Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello to each and every one of you, and welcome to the continuation of Introduction to Cost Accounting. Now, last time के पूरे lecture का मैं थोड़ा summary कर देता हूँ so that I can get into today's topic, which will obviously be the remaining matter of this particular chapter. So, what was explained to you last time? Here goes. इंट्रोडक्शन के पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है. नाउ यू आर गोइंग टू बी डूइंग कॉस्ट अकाउंटिंग because that is kind of the title of your subject, and in that costing दोनों आप करने वाले हो, और उसका जो फीचर होता है, this last thing, कॉस्ट रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल, वो भी आप ऑटोमेटिकली कर लोगे. उसका मतलब क्या था, क्या है, क्या होगा, एवरीथिंग हैज़ बीन डन इन द फर्स्ट लेक्चर. तो इट्स माय रिक्वेस्ट, अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा, देख लेना. देन objectives and scope of cost accounting, this new subject when you learn, why am I learning it for, okay, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, मैं इससे क्या सीखने वाला हूँ. ओके, तो आप जब उसका ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप समझ में आ जाएगा तो उसका इम्पोर्टेंस भी, जब इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किए थे कि वो मैनेजमेंट के लिए कैसे काम आता है, ओनर्स के लिए कैसे काम आता है, वर्कर्स के लिए कैसे काम आता है, जनता के लिए, पब्लिक के लिए कैसे काम आता है, सरकार, गवर्नमेंट के लिए कैसे काम आता है. लास्ट टाइम ये पूरा हो चुका है. टुडे द प्लान इज टू गो अहेड एंड टू टीच यू क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. व्हाट डज दैट मीन? खर्चा. आपके ज़िंदगी में, आपके लाइफ में खर्चे होते हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं होगा जब तक आपको गड़ा नहीं गया है ज़मीन के अंदर. ओके, आपको गड़ा नहीं जाता तब तक एवरीबडी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, ओके, somebody small in age, somebody big in age, okay, irrespective of size, नाटा, लंबा, ओके, जाड़ा, पतला, everybody will see, irrespective of social status, थोड़ा गरीब, बहुत अमीर, everybody will see. खर्चे तो होते ही है हमारी ज़िंदगी में, उठेगे तो खर्चा, सोने जाएंगे तो खर्चा. ओके, आजकल तो क्योंकि एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, सोते सोते मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है, आपका ये बिल है, आपका ये बिल है, ये ड्यू डेट है, पे करो. सो आई रिपीट, कॉस्ट. ओके,
एक्सपेंस इज अ स्मॉल पार्ट. कॉस्ट का मतलब टोटल होता है. देयर कैन बी मेनी एक्सपेंसेस जिसको ऐड करके आपको कॉस्ट मिलता है. तो कॉस्ट कौन से टाइप के होते हैं? बिकॉज योर मल्टीपल एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड इन एन MCQ फॉर्मेट. इट इज़ ऑलवेज वेरी गुड टू नो दिस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में ये डेफिनेटली आ सकता है. सो टुडेज प्लान इज, आई एम नॉट सेइंग सिंपल, बट द प्लान इज टू ओनली टीच यू द टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कि उसको क्लासीफाई किस तरह हम लोग करते हैं. ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में. सो कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर. सो दैट्स फर्स्ट वन. डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, दैट्स द सेकेंड वन. डिपेंडिंग अपॉन द मैनेजमेंट डिसीजंस, मैनेजमेंट को उस कॉस्ट के बारे में कौन से डिसीजंस लेने पड़ते हैं. डिपेंडिंग अपॉन एलिमेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, एंड डिपेंडिंग अपॉन functions. To be very frank to you, when I give you this list, all of you would be नहीं समझा सर. ओके, नो प्रॉब्लम, वो फॉर्मेलिटी थी, मुझे बताना था कि अभी आने वाले कुछ पलों में, कुछ मिनट्स में मैं ये थोड़ा और आपको लंबा एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बिकॉज देर आर मल्टीपल चैप्टर, पूरा चैप्टर जहाँ पे आपको ये कॉस्ट बड़े विस्तार से, बड़े आराम से, बड़े लंबे क्वेश्चंस में एक्सप्लेन किया गया है. बिकॉज सब्जेक्ट वो है ना कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ऑब्वियसली कॉस्ट के ऊपर नीचे आप कुछ करने वाले नहीं हो. यू आर गोइंग टू डील विथ कॉस्ट एंड यू आर गोइंग टू डील विथ कॉस्ट इन वेरी मच डिटेल. ओके, हाँ, सो लेट्स टेक दिस अप वन बाय वन. तो पहला क्या है? बिहेवियर. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट का बिहेवियर? वेल, उसमें इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 3 वेराइटीज आते हैं. पहला फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट. ओके, फिक्स्ड से यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ एन आइडिया. व्हाट डज दैट मीन? फिक्स्ड रहेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सेम. तो भले ही कुछ भी हो जाए, इट विल रिमेन द सेम. तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू, ओके, कि बाबा तुम एक गाड़ी में, एक बस में एक पैसेंजर बिठाओ, या अगर उसकी कैपेसिटी 100 की है, 100 पैसेंजर बिठाओ. द पेट्रोल वाला विल से, सर देखो पेट्रोल तो 100 रुपये का हो चुका है, अभी तुम एक को बिठाओ, तुम हवे को लेके जाओ, हमको क्या करना है, हम तो 1 लीटर का 100 रुपीज़ लेगा. तो इट्स वॉट, इट्स फिक्स्ड. द पेट्रोल पंप वाला will not ask the driver or the conductor कितने लोग बैठे हैं. 1 पैसेंजर का है तो मैं 100 रुपीज़ लूँगा, 2 पैसेंजर बैठा है मैं 2 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा, 10 बैठा है मैं 10 रुपये. नो, द पेट्रोल पंप वाला doesn't even bother to look into the vehicle. वो ढूंढता है कि पेट्रोल का वो जो नोजल है ना, टंकी किधर है, घुसेड़ दो, पेट्रोल भरो, डीजल भरो. हमको क्या करना है? सो आई रिपीट, दैट इज एन एग्जाम्पल. सिंपल भाषा में बता रहा हूँ मैं. ओके, ऑब्वियसली देयर आर बेटर एग्जाम्पल्स, बट राइट नाउ जस्ट टू टेल यू कि बाबा बिहेवियर में फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है. सम कॉस्ट का बिहेवियर इज फिक्स्ड. कभी कभी कुछ लोग का शक्ल होता है ना, कि मतलब अरे कॉमेडी सीन चल रहा है, तेरा शक्ल उतरा हुआ क्यों है? ट्रेजिडी में भी तेरा शक्ल उतरा हुआ रहता है, चलो समझ में आता है, कभी थोड़ा हंस ले, ये तो चेंज ही होता नहीं तेरा नक्शा. फिक्स्ड. ओके, आजकल मैं एक फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे रखता है कुछ, तो मैंने रील्स देखे हैं जहाँ पे लाइफ हैक्स में कोई तो है जो बोलता है कि ये करने की ज़रूरत क्या है, ऐसे सिंपल काम कर लो, और एंड में उनका चेहरा, आई डिडंट डू इट इन अ वेरी ओरिजिनल मैनर, बट जस्ट ट्राइंग टू से हिज एक्सप्रेशन इज फिक्स्ड. नो लाफ. फिक्स्ड. खर्चा फिक्स्ड है, कम ज़्यादा होता नहीं है, इट रिमेन्स द सेम. ओके, सो आई रिपीट, इट सेज अबाउट कॉस्ट विच डज नॉट वेरी विद द चेंज इन प्रोडक्शन. ओके, प्रोडक्शन, आप घर में आपने एसी लगा दिया, आपने, इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, ओके, लेट्स से a big factory, the whole factory is central AC,
पूरा ठंडा है, ठंडा है. मोबाइल्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड. यू मेड वन मोबाइल, तो क्या हो गया, एसी का बिल इतना ही आएगा, बिकॉज एसी इज डूइंग द सेम कूलिंग. यू मेक 1 लाख मोबाइल्स, एसी बोलेगा मुझको क्या फ़र्क होता है, मैं तो सेम कूलिंग कर रहा हूँ. आप एक मोबाइल बनाओ, प्रोडक्शन कम हो, ज़्यादा हो, ठप हो, एसी बोलेगा मैं तो सेम काम कर रहा हूँ. सो इट इज़ फिक्स्ड. ओके, हाँ. देन व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, अप डाउन, अप डाउन. सो व्हाट डज दैट मीन, अप डाउन? दिस एग्जाम्पल विच आई गिव यू नो ऑफ अ मोबाइल फोन. If you make 10 mobiles, you require 10 screens, screen, face of the mobile, बराबर. 10 processors, 10 cameras, वो dual हो, quad camera हो, जितना भी कुछ कैमरा का जो सेटअप होता है. If you make one mobile, one screen, one processor, one camera module. अच्छा, मतलब कम प्रोडक्शन तो कम हो जाएगा माल का खर्चा, रॉ मटेरियल. ज़्यादा प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो जाएगा. हाँ, बराबर है. इसको कहते हैं वेरिएबल. ओके, वेरी अप एंड डाउन. आई एम नॉट गिविंग टू मच ऑफ डिटेल फॉर द रीजन इज इन अपकमिंग चैप्टर्स ऑल ऑफ दिस इज प्रैक्टिकली विथ अमाउंट्स एंड नंबर्स एक्सप्लेन टू यू. सेमी वेरिएबल क्या है? अरे वो फिक्स्ड वेरिएबल जो पहले दो है ना, उनकी शादी हो जाती है ना, तो सेमी वेरिएबल पैदा होता है. तो काइंड ऑफ दैट. ओके, तो कभी कहते हैं ना कि बच्चों में जब बच्चे पैदा होते हैं, वो आदतें मम्मी पे गई है, शक्ल पापा पे गया है. तो आई रिपीट, कॉम्बिनेशन. हाँ, तो सेमी वेरिएबल्स थोड़ा थोड़ा फिक्स्ड है और थोड़ा थोड़ा वेरिएबल है. अगेन बेटर एक्सप्लेनेशन, इफ यू टेक मे बी अ टैक्सी और ऑटो में बैठोगे, अरे 20 रुपीज़ तो मिनिमम है. थोड़ा दूर भी जाओ तो 20 रुपये तो देना पड़ेगा. और उसके बाद में अगर डिस्टेंस बहुत लंबा हो जाएगा तो मीटर बढ़ता जाएगा. हाँ, तो उसको कहते हैं सेमी वेरिएबल. थोड़ा फिक्स्ड है, बाकी का वेरिएबल है. तो आई होप यू गॉट बिहेवियर के हिसाब से कॉस्ट को कैसे कैटेगराइज किया गया है. दिस इज वन ऑफ द मोर फेमस वंस, क्योंकि इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मेनी क्वेश्चंस यूज दिस कॉन्सेप्ट. ओके, नेक्स्ट वन, टाइम के हिसाब से how are cost distinguished. One is called as historical cost. तो you get an idea. Historic मतलब पुराना, भूतकाल. Predetermined cost. What do you mean by historical cost? खर्चा हो चुका है. These are actual cost of acquiring assets or producing goods or services. Assets को खरीदने का खर्चा, खरीद तो कब का लिया, गुड्स तो कब का बना लिया. दीज आर पास्ट कॉस्ट. तो यू कांट एक्चुअली डू मच अबाउट, ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते इसके बारे में. हिस्टोरिकल कॉस्ट, ज़्यादा मैं कुछ इसके बारे में बता भी नहीं सकता, बता के कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं है. हाँ, पता होना चाहिए आपको टाइम के हिसाब से. टाइम. प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा, दिस कैन बी कॉल्ड एज फ्यूचर कॉस्ट. देर आर इन दिस 2 वेराइटीज ऑफ फ्यूचर कॉस्ट. एक का मतलब है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक का मतलब है एस्टिमेटेड कॉस्ट. सो आई रिपीट माई सेल्फ, प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ. ओके, अगर आपकी फैक्ट्री है अचार बनाने की फैक्ट्री, पिकल बनाने की फैक्ट्री, तो बिफोर यू मेक दी अचार, ओके, एक बॉटल 500 ग्राम्स का अचार, ओके, बनाने के पहले आप प्री डिटरमाइन का मतलब क्या? बनाने के पहले यू कैलकुलेट इन योर माइंड, एक ग्लास बॉटल, ढक्कन, उसके अंदर का अचार, उसके अंदर वो मिक्स्ड अचार रहेगा, तो उसके अंदर आम कितना रहेगा और कैरेट कितना रहेगा और डिफरेंट इंग्रेडिएंट जो भी रहते हैं, ओके, चिली कितना रहेगा, ये ना 50 रुपीज़ में बन जाना चाहिए. प्री डिटरमाइंड. ओके, फ्यूचर में प्रोडक्शन होगा, पहले ही आपने एज पर योर एक्सपीरियंस, ओके, आपको पता रहता है कि इतने में ये हो जाएगा. हाँ, सो यू कैन मेक सम चेंजेस in predetermined cost. So time के हिसाब से very simple. One is historical cost and the other is predetermined. हाँ. Now management decisions is one of the longest list of cost that you can have, and actually this can go into a lot of details. Let me put it up one by one. जितना हो सकता है, जितने कम शब्दों में हो सकता है, I'll try to explain to you, because from the perspective of
ऑब्जेक्टिव्स इज व्हाट यू हैव टू बी नोइंग ये फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ प्रैक्टिकल सम्स नहीं, वो जैसे ही प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट हो जाएगी एंड दीज आर इन्वॉल्व्ड इन दोज प्रैक्टिकल चैप्टर्स, तो डेफिनेटली आपको तभी थोड़े और लंबे भाषा में, ओके, आई मीन टू से इन अ बिट मोर एलैबोरेट एक्सप्लेनेशन समझाया जाएगा. ओके, सो मैनेजमेंट डिसीजंस के हिसाब से व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट? वेल, द लिस्ट इज क्वाइट लॉन्ग. फर्स्ट, marginal cost. Marginal cost, basically the word marginal means variable costing. जो इसके पहले हमने बताया variable cost, semi variable cost, that was one angle of looking at a cost. So I repeat, खर्चे को आप अलग अलग एंगल से देख सकते हो और इसके लिए आप अलग अलग क्या नाम देते हो. मीनिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल समझना, एंगल समझना. घर में इफ देर इज समवन जिसको आप मम्मी बोलते हो तो शी इज योर मम्मी, बराबर, तो दैट्स योर एंगल ऑफ लुकिंग एट हर. बट योर पापा विल नॉट कॉल हर मम्मी, वो तो उनकी वाइफ हो गई, हाँ, तो उनका एंगल अलग हो गया. ओके, द सासू माँ विल कॉल हर बहुरानी, डॉटर इन लॉ, उनका एंगल अलग हो गया. योर मदर फॉर समबडी इज अ सिस्टर, उनका एंगल अलग हो गया, इज अ डॉटर, उनका एंगल अलग हो गया. इट्स द सेम कैरेक्टर, ओके, योर मम्मा डियरेस्ट, बट डिफरेंट पीपल लुक एट हर फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल. खर्चा वैसे होता है, होता तो वही है, बट कोई बोलता है मेरे को वेरिएबल एंगल से ये दिखता है, कोई बोलता है मेरे को ये एज अ मार्जिनल कॉस्ट दिखता है. हाँ, तो बाबा एंगल अलग है, खर्चा वही है. हाँ, सो आई रिपीट, मार्जिनल कॉस्ट, देयर इज अ चैप्टर बाय द नेम ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, तो उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट और वो जो है प्राइम कॉस्ट, प्राइम मतलब पहला खर्चा, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा. फर्स्ट कॉस्ट इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट. तो मार्जिनल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम प्लस वेरिएबल. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देखो भाई, मौका सबको मिलता है, सबको एक नहीं एक से ज्यादा मौका मिलता है, बट यू कैन ग्रैब ऑल द मौकास. सर मेरे को मौका 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, बट सर टाइम मेरे को ना इस चारों में से एक ही सिलेक्ट करने का था, तो सर मैंने 2 वाला सिलेक्ट कर लिया, मेरे को वो बेस्ट लगा. अच्छा, मतलब तू 1, 3, 4 जान ही दिया. हाँ सर, क्या करेगा, सब कुछ थोड़ी पकड़ सकता हूं मैं, जो पकड़ पाया ले लिया. हाँ, तो जो आप नहीं पकड़ पाए, जो मौके का फायदा आप नहीं ले पाए, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, अ कंपनी हैज ऑलवेज मेनी अपॉर्चुनिटीज. मौका उनके पास बहुत रहता है, बट उनके पास इतना पैसा नहीं रहता कि सब मौके का फायदा ले ले, सबको खरीद ले. नो, तो दे मेक अ डिसीजन कि भाई अपॉर्चुनिटी बी इज बेटर कंपेयर टू अपॉर्चुनिटी डी, तो लेट्स गो विथ अपॉर्चुनिटी बी. अच्छा, मतलब डी आपको जाना पड़ा, हाँ, वी हैड टू लेट गो, क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कि मौका था बट मौका जाने दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो अगेन इट इज अ नोशनल कॉस्ट. ओके, वो आगे जाके मैं और एक्सप्लेन करूंगा, बट again in a lot more detail explain to you, everything is explained to you in a lot more detail in future chapters. Replacement cost, quite simple. I have a mobile but वो मैं 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को नया खरीदना है. हाँ, तो उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है मार्केट में? अभी उस फीचर्स का मोबाइल कितने में मिलता है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो आई नॉट गेट टू मच इनटू इट. हाइपोथेटिकल और नोशनल कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट. What do you mean by hypothetical? अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, अरे ऐसा हुआ नहीं है, नहीं, अगर होता तो. हाइपोथेटिकल का मतलब ख्याली पुलाव. नहीं, अगर ऐसा होता तो ये नुकसान होता, वो नुकसान होता, उसको कहते हैं नोशनल, आपके दिमाग में चल रहा है, रियलिटी शो में ऐसा होता नहीं है. सो इम्प्यूटेड कॉस्ट. संक कॉस्ट, संक, दलदल, डूब गया, और फिर क्या करेंगे सर, डूब गया, अब क्या कर सकते हैं हम लोग? हाँ, मनी दैट हैज ऑलरेडी बीन स्पेंट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड. खर्चा तो हो चुका है, ओके, ये पैसे आपने इसके अंदर डाल दिए, अभी ये वापस आने वाला नहीं है. संक कॉस्ट. कंट्रोलेबल कॉस्ट, द वर्ड सेज ना, कंट्रोल कर सकता हूं मैं, इट इज इन माई हैंड्स, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, फ्रंट बैक, इन माई कंट्रोल. कंट्रोलेबल कॉस्ट. Relevant cost, when a company starts a project, okay,
प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, दे विल ऑलवेज फाइंड आउट ये प्रोडक्ट के साथ कौन से खर्चे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, रेलिवेंट है। दुनिया भर का खर्चा हमको मत बताओ। अगर हम इंडिया के इस हिस्से में प्रोडक्शन करने वाले हैं तो इस हिस्से में लेबर कितना देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या बिल आता है, पानी कितने में मिलता है, हमको रॉ मटेरियल कितने में मिलेगा। रेलेवेंट बात बताओ ना भाई, रेलेवेंट कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट, आई एम गोइंग टू, मैंने वो पिकल बताया ना, पिकल बनाने वाले हैं, ओके, उसका नॉर्मल खर्चा क्या है, ऊपर ढक्कन, ग्लास का बॉटल प्लास्टिक का रहेगा, अंदर के जो मटेरियल रहते हैं उसमें कितना नमक डाला जाता है, नॉर्मल खर्चा, ओके। इतने बनाने हैं 10, 20, 50, 5,000, तो इतना तो नॉर्मल खर्चा होगा ही। अब नॉर्मल कॉस्ट, अच्छा अब नॉर्मल कॉस्ट अनयूजुअल होता है। व्हाट डज दैट मीन? अरे ये सोचा नहीं था मैंने, बट ये खर्चा करना पड़ा मेरे को, कि ये हमेशा होता नहीं है। बिकॉज जो हमेशा होता है वो नॉर्मल कॉस्ट है, ओके। एग्जाम्पल, व्हेन यू डू कुकिंग, ओके, अगर उसमें ज़्यादा नमक हो गया, ओके, या तीखा ज़्यादा हो गया, बोलेगा मैं तो हमेशा कुकिंग कर रहा हूँ, मैं तो इतने दिनों से कर रहा हूँ, सब नॉर्मल चल रहा था, आज थोड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा, तो वो नमक का इफेक्ट थोड़ा कम करना पड़ेगा, वो तीखापन जो है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो आपको और कुछ मिक्स करना पड़ेगा। कोई बोलेगा कि वो कोकोनट का जो मिल्क आता है ना उसको डालो, या वो जो नींबू आता है ना उसको डालो। तो जो भी पंगा हो चुका है तो वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। दैट्स अब नॉर्मल कॉस्ट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप इट सिंपल फॉर यू, लाइक आई हैव अगेन एंड अगेन बीन मेंशनिंग। ऑल ऑफ दिस इज in much detail explained to you in upcoming chapters. Avoidable cost, you can avoid it, okay। ये खर्चा होने की क्या जरूरत थी, there was no need for this particular cost। तो I repeat, वो खर्चा जो आप बाजू में रखो, इसको करने की जरूरत नहीं है, avoidable cost। unavoidable cost नहीं, ये तो if I want to go from point A to point B, point A to point B, तो ये खर्चा तो करना ही पड़ेगा, ये तो अनअवॉइडेबल है। सो आई रिपीट, विच कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, बाजू में रखा जाता है, अवॉइडेबल। विच कैन नॉट बी, मतलब ये तो खर्चा करना ही पड़ेगा, जेब से भरना ही पड़ेगा, अनअवॉइडेबल। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है? येस्टरडे मैंने ये बटाटा वड़ा खरीदा था 10 रुपये में, पता नहीं आज 12 रुपया लिया उसने, तो 2 रुपया बढ़ गया ना। यू कैन आस्क द भाई साहब 2 रुपया किसका बढ़ गया? तो वो बोलेगा सर वो कोविड के लिए ना हम लोग सैनिटाइज करके देते। तो आई रिपीट, ही विल गिव सम एक्सप्लेनेशन कि सर हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, तो ऑब्वियसली आपका भी तो भाव बढ़ जाएगा, ओके, हमारा मेकिंग का भाव बढ़ गया। तो द डिफरेंस इन द येस्टरडे एंड द टुडेज कॉस्ट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट is called as difference. So management decisions has the longest variety of angles of looking at cost. Okay, so ये एक तरीका हो गया। Next, elements. Now elements का मतलब क्या है? Well, अगर आप what do you call, there are certain cartoons, okay, जहाँ पे I don't remember Captain Planet करके, it's a very old cartoon, okay. Elements of around you, what are elements around you? Earth is an element, wind is an element, water is an element, fire is an element. तो I'm just trying to say these are called as elements, okay, हमारे आसपास जो होते हैं। कॉस्टिंग में एलिमेंट्स का अलग मतलब है if you are making a product, because costing is manufacturing, उसका हिसाब किताब आपको रखना है। So प्रोडक्ट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? अभी आई विल नॉट से आग होता है, धरती होती है, नहीं, पानी होता है, नो, ओके, मटेरियल होता है। सो मटेरियल इज वन एलिमेंट। यार हवा का तो बनता नहीं है ना कोई भी चीज़, कुछ ना कुछ तो तुम मटेरियल यूज करते रहोगे, तो दैट इज वन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। लेबर, see you can automate your process. Yes, the best tech companies, the Amazons, the Flipkarts, the Teslas, the best tech companies, they use a lot of robotics, but still कहाँ ना कहाँ पे human being, not one, many human beings, labor is required. And last में जो material नहीं है, जो labor नहीं है, वो बाकी के other expenses में चला जाता है। तो I repeat, element के perspective से the main element is what? Material.
लेबर, एंड बाकी का बचा कुचा इज अदर एक्सपेंसेस. तो वो हो गया based upon element. Then based upon cost center or cost unit. Okay, what do you mean by a cost center in a company? Okay, a department can be a cost center. Okay, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आपके लिए ये खर्चा हुआ है, वो खर्चा हुआ है, ये खर्चा किया जाना पड़ा है. ओके, तो आई रिपीट, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट सेंटर. ओके, कि भाई दिस इज अ सेंटर और इसके लिए इतने खर्चे किए गए हैं. एंड कॉस्ट यूनिट, दैट्स सिंपल. ओके, किलोमीटर, a kiloliter, okay, सेंटीमीटर, these are units of measurement. तो आई रिपीट, कॉस्ट को भी कोई ना कोई यूनिट में मेजर किया जाता है. ओके, तो आई रिपीट माई सेल्फ, तो जिस यूनिट में उसको मेजर किया जाता है उसको कहा जाता है कॉस्ट यूनिट. सो आई रिपीट, देयर हैव बीन बिहेवियर हो गया, एलिमेंट हो गया, मैनेजमेंट हो गया, टाइमिंग के हिसाब से हो गया, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट यूनिट के हिसाब से हो गया. अगेन a lot more detail in upcoming lectures and in upcoming chapters. Functions is the last one, and again this is also very relevant and mostly used. So functions का मतलब क्या है? प्रोडक्शन एक फंक्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एक फंक्शन होता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक फंक्शन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक फंक्शन होता है. तो जब आप एनी टाइम in the life cycle of a product being manufactured, सबसे पहले actually research का खर्चा होगा. So COVID-19 वैक्सीन, सबसे पहले वैक्सीन थोड़ी बनाया, पहले तो रिसर्च किया. ओके, तो वो वायरस का I don't know the technical word, okay, but the genetics, okay, the first country where it was found out, that is China. Okay, they had to release it. तो जैसे आपका genetics होता है, okay, you are made of what, DNA. Okay, the virus is also made of something. Okay, तो scientist people, okay, उनके labs में बैठ के उन्होंने find out किया, because to make a vaccine you have to first understand by what are you dealing with. हाँ, तो पहले research का खर्चा हुआ, उसके बाद में there are many big countries that put a lot of money into this research, because they said the moment you make the vaccine, सबसे पहले हमारी पब्लिक को मिलना चाहिए, ऑर्डर हमारा लो. ओके, तो पहले रिसर्च हो, बाद में उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, उसके बाद में उसका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम स्टार्ट हुआ, एंड देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी बिग थिंग. कौन से कंट्री को हमको देना है, कितना प्रोडक्शन का कितना हिस्सा उसको जाएगा, इसको जाएगा. तो आई रिपीट माई सेल्फ, फ्रॉम द एंगल ऑफ फंक्शंस, ओके, रिसर्च डेवलपमेंट पहले होता है और वो कंटिन्यूसली होता है. ऐसा नहीं है कि एक बार रिसर्च डेवलपमेंट हो गया बाद में वो बंद हो गया. नो, इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस, बिकॉज एट द वेरी बिगिनिंग you took certain materials and you made that particular vaccine, but then अरे सर वैक्सीन महंगा है, 1500, 2000, 1000 रुपीज़, क्या ये सस्ते में नहीं बन सकता? नहीं बन सकता है ना, यू कैन यूज़ अनदर मटीरियल. ओके, वैक्सीन बनाने के अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग टाइप्स होते हैं. अगर तुम दूसरे टाइप में बनाओगे तो उसका सस्ता हो जाए. वो रिसर्च कंटिन्यूसली चलता रहे, वो डेवलपमेंट कंटिन्यूसली होता रहता है. तो फंक्शंस के एंगल से this is what you have to think. And very quickly, from the beginning till right now, this is what I have explained to you कि cost actually एक ही होता है, but when you look at it from different angles, behavior, time management, decision, element, cost center, cost unit, or from function angle, okay, you give it a different name. So all of this that I have previously explained to you in the last 20-25 minutes was in all probability in an MCQ style going to be useful to you. Okay, in upcoming lectures ये कहानी को हम आगे लेकर जाएंगे. तब तक के लिए ये लेक्चर को तो मैं डेफिनेटली एंड करता हूँ. If the explanation was understood by you, I hope you can like the lecture
and share, subscribe, share the information of the channel, the information of the lectures with your as many friends as possible, with the college WhatsApp group, with friends WhatsApp group, so the information of whatever is being done on this YouTube platform, on this channel, can reach to as many as possible, and it can be useful to as many as possible. Okay, अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में वो लिख दो. I'll do my best to explain it via the comment box to you. And till the time we meet again, take care of yourself, take care of your seniors and juniors, take care of your lovely family members. Good day to all of you. God bless.